Hello students, today we start with Cost Accounting, Unit 1, Nature and Scope of Cost Accounting. Definition of accounting is a process of accumulating, classifying, interpreting and presenting financial information. First we have to accumulate. Accumulate means इकट्ठा करना, फिर classify करना, फिर interpretate करना, उसको present करना एक तरीके से financial information को in the books of accounts. So this is simple. Now what is the limitation of accounting? First one is recording only monetary items. As per accounting principle, only the events measured in the terms of money are recorded in the books of account. As in like if something is credited, something is debited, तो यही आता है accounts में. कोई इवेंट हो रहा है या कुछ इस तरह का, कोई रिटायर हुआ, किसी का प्रमोशन हुआ, these information doesn't come in the accounting system. So this is somehow a limitation of accounting. And second one is time value money. The value of money always changes due to inflation. Inflation is increase in the business or increase in any production. So deflation means decrease. Balance sheet does not represent the true financial position of the business. So this is something which creates इशूज़ इन अकाउंट्स. तो ये कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं करती, हमेशा हर टाइम बैलेंस शीट एक जैसी नहीं रहती एंड डज़ नॉट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल. अच्छा वह अभी किसी की गुडविल अच्छी है, इफ़ द कंपनी इज़ देयर, जस्ट लाइक अ डिलॉयट कंपनी है एक, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, लेकिन आज इस साल उसकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं रही, उसका काम अच्छा नहीं रहा इन द टर्म्स ऑफ मनी. बट उसने कंपनी रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे बनाए, कस्टमर रिलेशन अच्छे बनाए, कस्टमर रिटेंशन करी, तो वो स्टेबल है और लेकिन उसकी कमाई ज़्यादा नहीं है. तो ये सब चीज़ें अकाउंट्स में नहीं आती. तो दिस कम्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थर्ड पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. एज वी से accounting is always inaccurate and estimates are always inaccurate. So estimates, it is possible to predict with any degree of accuracy. It is not possible to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset for the purpose of depreciation expense. As we can see example like there is a washing machine in our house. आज अगर हम उसे लेकर आते हैं तो 3-4-2 साल तक वो बहुत स्मूथली रन करती है, बहुत अच्छा चलती है, बट आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years मतलब वो डिप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी कीमत अपने आप से कम हो जाएगी. जब हम उसे बेचने जाएंगे तो वो उस वैल्यू में नहीं बिकेगी. सिंपल एग्जांपल जस्ट लाइक आवर फ़ोन, हम ख़रीदते हैं, उसके 2 साल में तो बैंड बच जाता है, तो वो कम वैल्यू में निकलता है. ऐसे ही हमारा एक्यूरेसी, हम उसको जज नहीं कर सकते किसी भी अकाउंट्स को. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़. नाउ वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग. So definition of cost accounting is the process of accounting for the cost from the point at which expenditure increase to establishment of its ultimate relationship with cost centers and cost unit. तो cost units और cost center I'll tell you further in further videos. and इसमें ये बताया हुआ है कि जो expenditure increase होता है उसको process को हम कैसे देखते हैं. The process of accounting for the cost from the point at which expenditure increase, the establishment of its ultimate relationship with cost centers and cost unit. Cost centers are the location where accounting is been done, and cost unit is the product and service which is been like एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा, एक सिर्फ एक पार्ट उसका. ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्वांटिटेटिव मेथड दैट एक्यूमुलेट्स, क्लासिफाइज, समराइज एंड इंटरप्रिटेट्स इंफॉर्मेशन फॉर 3 मेजर पर्पस. ठीक है. फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल. सो द second one is special decision, product decision. Firstly you control the organization or a company, you plan their roles and regulations, then you take special decisions according to the company. और फिर product decision is a basic decision which everyone takes. Now the point is costing is classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost. Now what is the difference of cost accounting and financial accounting? You somehow been clear with this. कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको इससे, बट विद द डिफरेंस, आप डिफरेंस जानोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर,
records the information regarding the cost incurred in the production activities including labor, overheads and material cost. तो इसमें सारी चीज़ों की कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स होती है. जो incurred means which occurred in the production activities like labor, overheads and material. So labor is been जो जिसने काम किया, जिसने वर्क किया. Overheads is like extra cost. Overheads are three overheads. इसको explain I'll further explain that, and in short overheads are like over material, labor and expenditures. So जैसे अगर हम होटल में खाना खाने गए तो वहाँ पर होटल वाले ने हमसे टिश्यू की कॉस्ट नहीं मांगी. वी ऑर्डर चाउमीन ओवर देयर, पर उसने हमसे उसकी कॉस्ट, चाउमीन की कॉस्ट में ही टिश्यू पेपर की, वाटर बॉटल की, मतलब जो हम ग्लास में पानी डाल के पीते हैं, तो ऐसे सब छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसकी कॉस्ट वो ऐड करता है. तो दिस इज़ समथिंग ओवरहेड्स एंड मटेरियल कॉस्ट. तो ये सब ऐड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में. एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर. सिर्फ मनी आइटम, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स एंड रिलेटेड टू मनी एंड विच इज़ इन नंबर्स. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ नंबर्स वाली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स होती है. नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टाइप. कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. एग्जाम्पल, a cost of acquiring assets as well as formed cost. Example, sales order. Now cost accounting records historical cost only. Example, occurred during the specific time. So this is something which has been recording only जिस पीरियड में हुआ. हिस्टोरिकल कॉस्ट का रिकॉर्ड्स होता है जो पहले की हो चुकी है. जैसे जो ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे आ गए, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होगी इसकी बैलेंस शीट में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. और कॉस्ट अकाउंटिंग का कैसे रिकॉर्ड्स होता है? जस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑल्सो, और जो ऑन गोइंग कॉस्ट है, जो फर्दर फ्यूचर की कॉस्ट है, वो भी रिकॉर्ड्स होती हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी? टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. एंड इसका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टू एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. End users. Who are the end user of cost accounting? Cost accounting is used by the management including employees, directors, managers among others for their internal assessments and management. Okay, it's been clear. And financial accounting is used by the external parties including shareholders, lenders and prospective investors, credit ratings agencies in the market. So there are lots of parties, groups and the people who can invest. ठीक है, बेसिकली द इन्वेस्टर्स. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजर्स. कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजर्स इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स who have some money and who have to, those who have to मतलब उसको उसी पैसे को चलाना है, उसी पैसे को वो आगे घुमा कर उसे और रन, मतलब और उस पैसे बनाने हैं. ठीक है. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन बाय मैनेजमेंट टीम एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन बाय इन्वेस्टर्स टीम हु कैन इन्वेस्ट, क्रेडिटर्स. ओके, एजेंसीज इसमें काम करती हैं. और इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन क्या मैटर होती है? मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी. सारी ट्रांजैक्शन इसमें आएंगी. आर रिकॉर्डेड बोथ सच यूनिट एंड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैंने ये नोट्स बनाए हैं विद इन द सच अ सिंपल लैंग्वेज from my book and from internet also and from other sources also. So this would be easy for you. You can directly go with it and if any doubt you can ping me there. And frequency क्या है इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की? इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. मतलब अगर आपको अभी कोई डाउट आ रहा है, अभी कोई अगर इसमें प्रॉब्लम आई कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपने मैनेजर्स को बताया. कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे डन होती है जैसे कंपनी में आप कोई आप बैलेंस शीट बना रहे हो, किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो,
तो suddenly you got an issue, so you directly go to the managers, go to the department directors, so they will help you. And in the financial accounting departments, it is prepared at the end of the accounting period, which is usually 1 year. तो आपको ये मतलब जैसे होता है ना, इसमें रिकॉर्ड्स मैंने आपको पहले बताया था, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट होंगी, तो फर्दर कॉस्ट, ऑनगोइंग कॉस्ट जब रिकॉर्ड नहीं होती तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती और ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो अब इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें इसमें कि कितना बारी इसे बनाया जाता है, तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग को तो रेगुलर बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, और इसको ईयरली बनाते हैं, इन द एंड ऑफ ईयर, इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैसे देखा जाता है? इट मेजर्स द प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट मेजर्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द होल कंपनी। ओके, सो इसमें प्रोडक्ट, प्रोसेस, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रॉफिट, मतलब हर एक छोटी छोटी प्रोसेस होता है ये, जस्ट लाइक जैसे ये ऐसे ऐसे एक प्रोसेस से चलता है। एंड इसमें कैसे देखा जाता है इन द एंड ऑफ द ईयर कि होल कंपनी ने कितना पैसा कमाया, ठीक है, पूरी कंपनी ने एक ही बारी में, ये एक साल में यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पे कितना पैसा कमाया इस साल से, मतलब ये जा रहा है 2019 एंड ये जा रहा है 2020, तो यहाँ पे आकर आपने कितना कमाया, इससे ज़्यादा कमाया, विल इट बी गो हाई, और ये ज़्यादा है नीचे, तो ये ऐसे प्रॉफिट देखता है। और फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ फोरकास्टेड यूजिंग बजट टेक्निक्स। फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग, इसमें बजट टेक्निक्स कर सकते हैं हम, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें जब हम नोट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम कहाँ ज़्यादा लगाएं, कहाँ पैसा ना लगाएं, तो हम बजट टेक्निक को डाल सकते हैं। पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बजट एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब एस्टिमेट लगाना, एक आइडिया लगाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। एंड रिपोर्ट्स, वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेकडाउन इवन एनालिसिस, ये सब इसमें देखा जाता है, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेकडाउन इवन एनालिसिस रिकॉर्ड होते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ईयरली बनती है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सब ईयरली बनते हैं, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस इसमें लिखा है डेली, वीकली, मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, जैसे 4 महीने में एक बारी, 6 महीने में एक बारी, हर टाइम इसको ये चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑन एनुअल बेसिस। ओके, now let's see, this is the whole difference between financial accounting and cost accounting, so you will be clear. And then this is very important question actually, I must say, go with it, it's usually come with 4 to 10 marks in your examination. And let's see now the advantages of cost accounting. This is not important, that's why I didn't explain it, but yet you can see I written some points कि तो आपके माइंड में रहें, अगर आ भी जाता है या फिर अपने आप बना सकते हो। तो क्या पॉइंट्स है, एडवांटेजेस क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की? रिवील्स एक्टिविटी, हमें बताता है, रिवील करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, जो अंदर की कंपनी की इन्वेंट्री होती है, मतलब जो डिसीजंस होते हैं, पैसा आना जाना, कोई चीज़ इनपुट आउटपुट, ये सब कंट्रोल करता है। कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, हमें पता चलता है कहाँ फालतू खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, कहाँ डालना चाहिए, दिस वुड दैट हेल्प इन दिस। एंड एक्यूरेसी टेस्टिंग, प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स, आइडल कैपेसिटी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस फिक्सिंग एंड वेजेस फिक्सेशंस। वेजेस मीन्स दिहाड़ी, जैसे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग, डेली सैलरी जो लेते हैं, जस्ट लाइक फ्रीलांसर्स, सो दे टेक चार्जेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एज एन आवर्स, दे वर्क फॉर आवर्स, दे वर्क फॉर डेज, तो डेली फिक्सेशन में हेल्प करता है। एंड दी सम देयर आर सम एग्जाम्पल्स, देयर आर सम पॉइंट्स of advantages of cost accounting. Okay, thank you so much, all the best.